Good morning, children. Today I am going to explain you the poem I Know Why the Caged Bird Sings by Maya Angelou. And a brief about her. She is a very powerful feminist writer and also a civil rights activist. That is, she worked for the rights of the Africans who were residing in America, African Americans, right? So now I start with this. In this poem, the poet is writing about is comparing a bird who is free and a bird who is in prison. Here, the free bird represents the whites in America, okay, white-skinned people, and the caged bird represents, or it is a metaphor for African Americans who were dominated by the whites. And there was a lot of color discrimination in America. The whites were the privileged ones and the blacks were the underprivileged ones. The blacks couldn't go in the same bus, couldn't use the toilets of the common public transport, public toilets, and their children could not study in the schools or colleges where the children of the whites were studying. So there was a lot of discrimination. They couldn't even hold meetings, gather together. So they were dominated, they were restricted socially, religiously, everywhere. So then certain Africans who were bold enough, they protested against it. So this poem is a protest against that, right? Indirectly. So I start. A free bird leaps. Leaps means jumps high on the back of the wind. Now if we see here, the first two lines speak that there's a bird who is free and it jumps and takes over the flight on the big back of the wind. It is moving with the flow of the wind. It is flying with the flow of the wind and floats downstream. And how is it flying? Flying in the direction of the river. Downstream, stream here refers to river. So it is floating in the direction of the river till the current ends. So there is no restriction. It is flying free till where the river ends, and dips his wing. This free bird dips his wing in the orange sun rays. Now the sky is full of colors, and there is orange color here. So here the bird is dipping its wings in the orange sun rays. Here this orange sun rays refers to a very lively atmosphere, बड़ा अच्छा सा happy atmosphere. See, because orange color represents glow and happiness. Orange color जो होता है वो happiness का color होता है. तो वो अपने wings में happy atmosphere में dip कर रही है and dares to claim the sky. और वो जो free bird है वो it dares means उसके पास इतना courage है, इतनी उसकी हिम्मत है कि वो पूरे sky को claim करी कि sky मेरा है, that sky is mine, it claims. ठीक है. Now here the figure of speech यहाँ पर dares to claim the sky. ये कौन सा figure of speech होगा? This will be hyperbole, because यहाँ पर exaggerate किया हुआ है ना कि it claims. It has the courage to even make the sky its own. Okay? Now we come to the next stanza, second stanza. But a bird that stalks down his narrow cage. Now these lines are referring to the prison bird, the bird which is being caged, or which is in the cage, which is in the prison. Okay? Now the bird which will be in the prison will not have space, like the free bird cannot fly in the sky like a free bird. So it can only stalk. Stalk means just to move slowly and very quietly, because it doesn't have space. Down his narrow cage, just within the cage only it can fly. Okay? Because the space there is very less. This narrow cage is referring to restrictions on life. Here, this is also referring to, if we go deep in this poem, it is referring to the restrictions which were forced on the black people living in America by the whites.
ठीक है. Can seldom see through his bars of rage. Now that bird which is inside the cage, जो prison के अंदर है, वो can seldom, बहुत कम, rarely can see through his bars of rage. तो वो जो बर्ड है वो प्रिजन के अंदर है और वो बाहर देख ही नहीं पाता है. वो बर्ड नहीं देख पाता है. क्यों नहीं देख पाता है? बिकॉज ऑफ हिज बार्स ऑफ रेज, बिकॉज ही इज वेरी एंग्री. रेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा. वो बहुत ज्यादा वायलेंट है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, एंग्री है. तो वो अपने एंगर में बाहर का फ्रीडम भी देख नहीं पाता है. महसूस हो तब करेगा ना जब प्रिजन से बाहर होगा, तो वो फ्रीडम देख भी नहीं पाता है बिकॉज ऑफ हिज रेज. His wings are clipped. अब वो उसका फ्रीडम है, उसके पास फ्रीडम है ही नहीं, क्योंकि उसके विंग्स जो हैं वो क्लिप हो रखे हैं, टाई किए गए हैं, फासन किए हैं किसी चीज से. एंड हिज फीट आर टाइट, और उसकी जो फीट हैं उनको भी बांध दिया है. ये पूरी लाइन हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्लेवरी, एनस्लेवमेंट. यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही है ब्लैक जो अफ्रीकन अमेरिका में रहते थे वो कैसे स्लेव थे अंडर होम, अंडर द वाइट्स. ठीक है. सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग. अब ये जो कंडीशन है बर्ड की, ये एक छोटा सा केज है उसके पास, वो बेचारा बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं, उसके फ्री मूवमेंट ही नहीं कर सकता. वो थोड़ा थोड़ा सा हिल सकता है बाहर, कैन नॉट सी व्हाट इज आउटसाइड. एंड ये बहुत मिजरेबल कंडीशन है उसकी, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा है और इस गुस्से में वो बाहर देख नहीं पाता. और उसके विंग्स और उसकी जो फीट है वो टाइट है. तो ये एक बड़ी ही कैसी दर्दनाक कंडीशन है, वेरी पिटियस कंडीशन है, वेरी मिजरेबल कंडीशन है इस बर्ड की. दैट मीन्स मिजरेबल कंडीशन ऑफ द blacks, Africans in America. Now we come to the third. The caged bird sings. Now, the one thing out here that जब वो बाहर फ्रीडम उसको महसूस नहीं कर पाता क्योंकि वो टाइड है, तो वो क्या करता है? सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग. इसलिए वो सब बंधा हुआ, उड़ नहीं सकता, लेकिन उसका गला तो नहीं बंधा हुआ है, तो इट सिंग्स. यहाँ मतलब है कि वो बर्ड ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी, उसके पास अभी भी होप है कि वो फ्रीडम उसको एक दिन मिलेगा. तो यहाँ पर जो है ये जो सिंगिंग है उसकी, जो सॉन्ग वो गा रहा है, वो ये क्या है? एक प्रोटेस्ट है, ये एक रिबेलियन है अगेंस्ट द ऑपरेशन. ऑपरेशन का मतलब जब दबाया जाता आपको, तो ब्लैक्स को व्हाइट वाले लोग थे उनको दबाते थे, डोमिनेट करते थे. तो यहाँ पर जो अफ्रीकन थे वहां पर वो उसको प्रोटेस्ट करते थे, चाहे दबी आवाज में करें. तो यहाँ पर जो ये बर्ड प्रिजन में है, केज्ड है, वो मजबूर है, हेल्पलेस है, लेकिन हेल्पलेस कंडीशन में भी उसने अपना स्ट्रगल छोड़ा नहीं है. वो स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम. अभी भी उसको होप है फ्रीडम की, स्ट्रगल कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है. हाथ पैर उसके पैर बंधे हुए हैं, विंग्स बंधे हुए हैं, लेकिन उसका थ्रोट वो नहीं बंधा, तो वो गा रहा है. थ्रोट टू सिंग. द केज बर्ड सिंग्स विथ फेयरफुल ट्रिल. और किस तरीके से वो केज बर्ड सिंग कर रहा है? फेयरफुल ट्रिल. फेयरफुल का मतलब डरा हुआ. ठीक है, डर है उसमें. ट्रिल होता है आवाज जो वाइब्रेट करती होती है. ठीक है. ऑफ थिंग्स अननोन. और ये जो थिंग्स अननोन है ये रेफर करती है अननोन फ्रीडम. द बर्ड इज सिंगिंग fearfully in a vibratory voice about the things unknown freedom के बारे में वो sing कर रहा है. But longed for still and he has not given the hope. उसने hope नहीं दी है. longed for still. अभी भी वो इतनी miserable condition में है prison के अंदर, पर फिर भी उसको hope है कि एक दिन ये prison से बाहर निकल जाएगा. longed for still. He has a hope, a desire that he'll come out. And his tune is heard. और उसकी ट्यून क्या है? सुनाई देती है, हर्ड होती है. ऑन द डिस्टेंट हिल. दूर कहीं पर उसकी आवाज पहुंचती है. ये दूर उसकी आवाज पहुंचना क्या है? एक होप है कि यस, उसके पैर बंधे हुए थे, विंग्स बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी उसने प्रोटेस्ट करा, उसने अपने फ्रीडम के लिए फाइट करी. कैसे फाइट करी? अपने गाने के थ्रू फाइट करी. और वो सॉन्ग नजदीक नहीं पहुंचा, नजदीक के लोगों ने उसे सुना नहीं, लेकिन दूर कहीं पर पहुंचा. तो एक होप है, ये डिस्टेंट हिल में एक होप है. फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम. बिकॉज वो बर्ड किस चीज के बारे में गाना गा रही है? फ्रीडम के बारे में. ठीक है.
द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज. अब वापस हम आते हैं फ्री बर्ड की कंडीशन में जो बिल्कुल फ्री है. दिस रेफर्स टू द वाइट्स. द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज. जो फ्री बर्ड है वो अनदर ब्रीज के बारे में सोचती है. मोर फ्रीडम, ऑलरेडी फ्री है और फ्रीडम उसको चाहिए. तो और कैसी है वो फ्री बर्ड? सेल्फिश है और फ्रीडम चाहिए. एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज. और जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स वो बहुत स्ट्रांग विंड्स होती हैं जो इक्वेटर से होते हुए वेस्ट की तरफ जाती है. तो वो जो ट्रेड विंड्स हैं, एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज एंड द फैट वर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन. नो, तो ये जो फ्री बर्ड है वो मोर फ्रीडम चाह रही है और इट इज मूविंग इन द स्ट्रॉन्ग विंड्स में. और जो यहाँ पर ये ट्रेड विंड्स हैं, इट हैज बीन पर्सोनिफाइड. जैसे जो ट्रेड विंड है वो पर्सोनिफाई किया है कि वो मूव कर रहे हैं कैसे? सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज. ट्रीज, इंसान जो होता है, ह्यूमन बीइंग, वो साई करता है. साई का मतलब है गहरी गहरी सांस लेने, दुख, जब इंसान दुखी होता है. तो ट्रीज भी किसके साथ हैं? विद द केज्ड बर्ड के साथ. तो वो भी महसूस करते हैं उसका पेन. दे आर साइंग एंड द ट्रेड विंड इज मूविंग सॉफ्टली थ्रू द साइंग ट्रीज एंड द फैट वर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन. और वो जो फ्री बर्ड है वो ही वांट्स मोर फ्रीडम एंड इज वेटिंग फॉर द फैट वर्म्स. वो कहीं भी जा सकती है फ्री. और वहां पर मॉर्निंग में, डॉन ब्राइट, अर्ली मॉर्निंग में, कैन सी ऑन द डिफरेंट एरियाज फैट वर्म्स विच इट विल ईट एंड ही नेम्स द स्काई जोन. और इतना ज्यादा उसके पास करेज है, इतना ज्यादा वो अपने आप को समझता है कि उसने पूरे स्काई को कर दिया. एंड ही नेम्स द स्काई जोन. और उसने ये बोला कि स्काई जो है वो मेरा है. बिकॉज उस लेवल पे और कोई वहां पर बर्ड है ही नहीं. अकेला वो बर्ड फ्लाई कर रहा है एट अ वेरी ग्रेट हाइट. तो वो कहता है कि पूरा जो स्काई मेरा है. जैसे कि व्हाइट्स बोलते थे कि पूरा अमेरिका हमारा है, इसमें और किसी का हक नहीं है. ठीक है, नोबडी कैन से एनीथिंग. दैट इज इट. बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स. लेकिन केज्ड बर्ड कहाँ? ये तो फ्लाई कर रही है अनदर ब्रीज पे, स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ जा रही है, फैट वर्म्स खा रही है, एंजॉयिंग लाइफ, हैप्पीनेस. बट हियर केज्ड बर्ड जो है वो इज स्टैंडिंग ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स. वो उस प्रिजन के अंदर, वो जो प्रिजन है, वो जो केज है, वो एक तरह का उसका ग्रेव है जहां उसके ड्रीम्स खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं. ठीक है. हिज शैडो शाउट्स. और उस बर्ड की शैडो शाउट करती है ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीन. यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है. नाइटमेयर, वो बर्ड ऐसे शाउट करता है प्रिजन के अंदर जैसे कि इंसान नाइटमेयर में स्क्रीम करते हैं. नाइटमेयर क्या होता है? जब हम व्हेन वी ड्रीम अ वेरी फेयरफुल, बहुत डरावना सा हम कोई सपना देख लेते हैं, तो वो नाइटमेयर होता है और उसमें हम चीखते हैं. तो वो जो केज्ड बर्ड है वो शाउट कर रहा है. उसकी शाउट और ज्यादा भयानक होती है नाइटमेयर स्क्रीम से भी. हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड. उसकी वो जो शाउट कर रहा है नाइटमेयर, जैसे नाइटमेयर में शाउट करते हैं, जो वो शाउट कर रहा है बहुत तेज करता है और बहुत फेयरफुल है. जबकि उसके विंग्स क्लिप्ड है, उसके फीट टाइड है. तो बहुत मिजरेबल कंडीशन में, फिजिकली भी बहुत बुरी स्थिति में है कि सब टाइड हो रखा, कोई स्पेस नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है. फिर भी वो उसकी जो शाउट है, स्क्रीम है, इट इज लाउडर देन द नाइटमेयर. So he opens his throat to sing, and that is why he opens his throat to sing. He still doesn't give the struggle. He still is protesting and rebelling against the oppression. The caged bird sings with a fearful trill. ये सेम थर्ड स्टैंजा जो है वो रिपीट किया गया सिक्स स्टैंजा में. रिपीटिशन क्यों है? टू एम्फेसाइज, टू स्ट्रेस that this bird which is in the in the cage, why it is singing? It is singing for its freedom, though it is tired, it is weak, physically it is very in a bad condition, mentally he is in agony, mentally वो बहुत परेशान है, but has not given the struggle, but has not given the hope for freedom, is still hoping. ठीक है. With a fearful trail of things unknown, but longed for still, and his tune is heard. And the most important thing here is and his tune is heard. उसकी आवाज पहुंच गई है कहाँ तक? On the distant. नजदीक नहीं पहुंची है पर डिस्टेंट पे पहुंची है. For the caged bird sings of freedom.
तो जैसे अफ्रीकन अमेरिकन ने प्रोटेस्ट जब किया था तो वो वाइट्स उनकी बात सुनते ही नहीं थे, लेकिन जैसे फिर पोएट्स लाइक माया they kept on writing essay poems, and finally there was a time that they got equal rights in America. The blacks also got the equal rights. So this is the time when the blacks were suffering under the whites. So this poem is finished. I hope you understood it. Thank you.